Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University as well for all BCom program or BCom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 1. लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स स्कोप. Explore the prerequisite for financial literacy including education, numerical and communication skills. Learn the key skills important for financial literacy and methods to educate students on this topic. Familiarize with the 5C approach to financial literacy education. बेसिकली इस चैप्टर में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है, ठीक है, और क्या 5C's अप्रोच दे रखे उसके बारे में हमें पढ़ना है. इंट्रोडक्शन: Financial literacy is a crucial skill set that enables individuals to make informed and effective decisions about their financial resources. In an increasingly complex financial environment, the ability to understand and manage personal finance is essential for achieving financial stability and success. This section explored the meaning, importance, and scope of financial literacy along with the necessary prerequisites and approaches to educating students in this area. बेसिकली इस चैप्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी से ही मतलब ये पढ़ के ही समझ आ रहा है कि फाइनेंस की नॉलेज होना, ठीक है, कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे आगे इन फ्यूचर काम आ सके, इसका हमें इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, क्या स्कोप है फाइनेंशियल लिटरेसी का, ठीक है. Financial literacy meaning and definition. Financial literacy refers to the knowledge and understanding of financial concept and risk, which enable individual to make informed choices, manage money effectively, and achieve their financial goals. It encompasses a broad range of topics including budgeting, saving, investing, and understanding credit and debt management. फाइनेंशियल लिटरेसी एक रेफर्स करते टाइप की नॉलेज को, ठीक है, अंडरस्टैंड कि हमें अपने हमें जो फाइनेंशियल है उसका हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो इंडिविजुअल है वो अपने फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ठीक है, अपना मनी को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके, ठीक है, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके. अब जब हमें फाइनेंस के बारे में पता हो कि हमें उसे कैसे सेव करना है, तभी तो हम उसको अपने गोल्स के ऊपर लगा पाएंगे, ठीक है. अगर हम कोई मनी को मैनेज करके ही नहीं चलेंगे, अभी सारा उड़ा देंगे, तो इन फ्यूचर हमें ही प्रॉब्लम होगी. तो वो बता रहे हैं कि क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हमें अपने मनी को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है. इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. Financial literacy equip individual with the knowledge to make informed financial decision leading to better financial outcomes and reduce risk of financial pitfall. ये हमें एक बेटर फाइनेंशियल आउटकम बेटर देता है, ठीक है. अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज है तो हमारा जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है. Financial security. Understanding how to manage effectively can help individual build saving, reduce debt, and achieve long-term financial security. Financial security इसका एक इम्पॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक है कि मनी को कैसे मैनेज करना इफ़ेक्टिवली. अगर हमने मनी को मैनेजली इफ़ेक्ट कर लिया, कैन इंडिविजुअल फिर उसको सेव करेगा जिससे डेट कम होगा और हम अचीव कर पाएंगे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, ठीक है. अगर कोई भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हम उसको अचीव कर पाएंगे ईजीली. Empowerment. Financial literate individuals are empowered to take control of their finance, lead to increased confidence and independence in managing financial matters. Scope of financial literacy. Personal finance management. पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? बजटिंग, सेविंग एंड मैनेजिंग एक्सपेंस टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बजट प्रिपेयर करना, ठीक है, सेविंग
एंड मैनेजिंग एक्सपेंस, अपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग, understanding different investment options and strategies for wealth accumulation, credit and debt management, knowledge of how credit work, how to use it wisely and strategy for managing and reducing debt. हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा क्रेडिट है, हाउ इट यूज़ इट वाइजली, हमें इसको कैसे यूज़ करना है, और स्ट्रेटेजीज बनानी है अपनी मैनेज, या अगर कोई डेट है उसको रिड्यूस करने की या मैनेज करने की हमें स्ट्रेटेजीज स्कोप है. Risk management, awareness of financial risk and how to mitigate them through insurance and other protective measures. Prerequisite of financial literacy, level of education and numerical and communication ability. Level of education. A fundamental level of education is necessary to grasp basic financial concepts. This includes understanding the principle of arithmetic, reading, and comprehension skills, which are critical for interpreting financial information. फंडामेंटल, ये एक बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. अगर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, न्यूमेरिकल स्किल्स होंगी, तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फाइनेंशियल लिटरेसी में. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होंगे? दिस स्किल्स इनेबल्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कन्वे करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशंस को, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे किस पे, अपने बेस्ड पे क्वांटिटेटिव जो डाटा प्रिपेयर हुआ है. स्किल इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. न्यूमरेसी स्किल, the ability to perform basic arithmetic operation and understand financial calculation. Critical thinking, evaluating financial information critically to make sound decision. Problem solving skill, addressing financial changes and finding appropriate solution. Decision making skill, making choice that align with one financial goals and circumstance. ये skills है. न्यूमेरिकल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल. एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब हम स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट पे. अर्ली एजुकेशन, इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट एट अ यंग एज टू बिल्ड अ, मतलब हमें आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें पहले ही, जिससे अब क्या होता है कि जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते, तो अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करवा देना फाइनेंशियल लिटरेसी की, जिससे क्या होगा, जो यंग एज को ही पता चल जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है आजकल के टाइम पे, ठीक है. अब कुछ लोगों को 20+21 के बाद पता चलती है कि क्या वैल्यू है फाइनेंशियल की, बट नॉट एक्चुअल एज. मतलब हमें टाइम से पता चल जाना चाहिए कि फाइनेंशियल की नॉलेज होना कितना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके बिना कुछ भी नहीं है. प्रैक्टिकल लर्निंग, यूज़ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सिमुलेशन टू टीच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. हमें उनको रियल लाइफ एग्जांपल देने चाहिए कि अगर फाइनेंशियल की आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ सकती है, और हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स हैं, ठीक है. कॉन्टीन्यूस लर्निंग, encourage lifelong learning of financial literacy to adapt to changing financial landscape, ठीक है. द 5C अप्रोच. कॉम्प्रीहेंशन, इंश्योरिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, मतलब जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फाइनेंशियल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. उससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईजिली हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, ठीक है. कैपेबिलिटी, डेवलपिंग द स्किल्स टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस इफेक्टिवली. कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस टू मेक इन्फॉर्म. Teaching financial literacy in a context that is relevant to student lives. Control, empowering students to take control of their financial future through informed decision making. Summary: financial literacy is a critical life skills that enables individual to manage their financial resources effectively. It involves understanding financial concept, making informed decision, and taking control of one financial future. The prerequisites for financial literacy include a certain level of education, numerical and communication skills, and critical thinking ability.
Educating students in financial literacy should focus on building comprehension, capability, confidence, and control through practical and continuous learning approaches. बेसिकली अभी हम वही ऊपर जो चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट्स को हमें एजुकेट करना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2. वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज. Learning objectives: understand the role and importance of financial institution in the company economy. Identify different types of financial institution including banks, insurance companies, and postal services. Learn about the function and services provided by these institutions. Explore the use of mobile app in accessing financial services. बेसिकली इस चैप्टर में हमें रोल पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि क्या इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है. Financial institutions play a critical role in the financial system, facilitating the flow of funds between savers and borrowers, thereby promoting economic growth. They provide various services including savings account, loans, insurance, and postal services. In recent years, technology has revolutionized how people access these services, with mobiles become increasingly popular. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इकनॉमी में. ये फ़्लो करते हैं फंड्स का किस किस में, सेवर्स और बोरर्स के बीच में, किसके लिए, जब कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो सके. ठीक है, और ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जो बैंकिंग सर्विसेज होते हैं उनमें सेविंग अकाउंट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं. जो पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी हमने देखा है, अभी पढ़ेंगे आगे, वहाँ पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे अब डायनामिक चेंजेस आते रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या आती है कि जो अब इन सब चीज़ों का सर्विसेज का यूज़ कैसे करते हैं, मोबाइल ऐप से करते हैं. ठीक है. Concept of financial institution and its importance. A financial institution is an establishment that conduct financial transactions such as investment, loans, and deposits. FIR are essential because they facilitate the allocation of resources in the economy, provide a safe place for individual and business to store and invest their money, help manage risk through insurance product, enable efficient transfer and settlement of funds. तो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है, ये सब सर्विसेज करवाता है. ये फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द इकोनॉमी, प्रोवाइड अ सेफ प्लेस ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू स्टोर. मतलब ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाता है इंडिविजुअल्स को और बिजनेस की को स्टोर कर सके और अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सके, और मैनेज करता है रिस्क, कौन से, इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है. Functions of financial institution. Financial institution perform several key functions including mobilization of saving, collect saving from individual and business which can be used for investment. सेविंग्स कलेक्ट करता है इंडिविजुअल से और बिजनेस पे, फिर वो यूज़ करता है एक एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, ऑफर loans to business and individual supporting इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लोन ऑफर करता है बिजनेस को और इंडिविजुअल को. फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट, इनेबल स्मूथ पेमेंट ट्रांजेक्शन बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. रिस्क मैनेजमेंट, प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दैट हेल्प मैनेज फाइनेंशियल रिस्क. Categorization of various financial institution. Financial institution can be categorized into three main sector. ये financial institution को 3 sectors में divide कर रखा है. पहला है banking sector, insurance sector and postal sector. बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो ऑफ़र करते हैं सर्विसेज. क्या क्या सर्विसेज देते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, कमर्शियल बैंक. और सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, रेगुलेट द मनी सप्लाई. वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, ओवरसी द बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम को ओवरसी करते हैं. नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ डेथ. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है अदर टाइप के रिस्क को, जिसके अंदर हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी. ठीक है. पोस्टल सर्विसेज ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज. पोस्टल सेविंग बैंक्स क्या होता है, ये ऑफर करती है जो बेसिक बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गए. ठीक है. ऑफन कैटरिंग टू रूरल पॉपुलेशन.
Postal insurance services provide insurance product through the postal network. Comparison of three financial sector. अब इनका क्या क्या कंपैरिजन है? बैंकिंग सेक्टर फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. इनका फोकस होता है किस पे? फाइनेंशियल सर्विसेज. किस क्या क्या इंक्लूड हो गए? डिपॉजिट हो गए, लोन हो गए, पेमेंट प्रोसेसिंग हो गए. इंश्योरेंस का इनका बेसिकली इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे उनका स्पेशलाइज जो इसका रिस्क मैनेजमेंट होता है वो इंश्योरेंस. ठीक है. और पोस्टल सेक्टर कंबाइंड बैंकिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, बैंकिंग का भी और इंश्योरेंस का भी. ये उन जगह पे टारगेट करते हैं जो अंडर रिजर्व एरियाज होते हैं. ठीक है. मोबाइल ऐप्स. मोबाइल्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे फाइनेंशियल सर्विसेज आर एक्सेस, ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड स्पीड. कुछ मोबाइल्स ऐप होती है जो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्पीडली. ठीक है. मोबाइल ऐप फॉर बैंकिंग सेक्टर. मोबाइल बैंकिंग अलाउ customer to manage their account, transfer money, pay bills and even apply for loan from their smartphone. मोबाइल बैंकिंग मतलब बैंकिंग अपनी एक ऐप बना देता है जिससे जो कस्टमर है वो अपने अकाउंट, अगर कोई मनी ट्रांसफ़र हो तो अपने जो मोबाइल ने बैंक ऐप बनाई है उससे करे. ठीक है. कोई भी बिल पे करना हो, ठीक है, कोई भी अप्लाई करना हो किसी लोन के लिए तो वो सब ऐप से हो जाता है. मोबाइल ऐप फॉर इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस ऐप इनेबल यूज़र्स टू परचेज पॉलिसीज़. इंश्योरेंस ऐप जो होती है वो यूज़र्स को क्या क्या देती है? परचेज कर लो पॉलिसीज़ को, फाइल क्लेम्स एंड मैनेज देयर इंश्योरेंस अकाउंट डिजिटली. और उनके अकाउंट्स भी डिजिटली मैनेज हो जाते हैं. मोबाइल ऐप फॉर पोस्टल सेक्टर्स. पोस्टल सर्विसेज ऐप ऑफर सर्विसेज लाइक ट्रैकिंग पैकेजेस, मैनेजिंग पोस्टल सेविंग्स एंड एक्सेसिंग पोस्टल इंश्योरेंस. Need of availing of financial services from bank, insurance companies and postal services. Financial services are crucial for managing personal and business finance, protecting against risk and ensuring transfer of funds. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर इसेंशियल फॉर सेविंग मनी. ये इसेंशियल होता है मनी को सेव करने के लिए, लोन ऑब्टेन एंड मेकिंग पेमेंट्स. इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. कोई भी इवेंट हो जाए अनफॉर्चुनेट जिसका मतलब कुछ किसी चीज़ का हमने सोचा ना हो. रिड्यूसिंग फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी. ठीक है. पोस्टल सेक्टर्स offer accessible banking and insurance services particularly in rural and remote areas. बेसिकली ये ऑफ़र करता है बैंकिंग सर्विसेज भी और इंश्योरेंस सर्विसेज भी ऐसे एरिया पे, पर्टिकुलर रूरल एरिया पे फॉलो करता है. Summary. Financial institutions are vital for economic stability and growth. They are categorized into banking, insurance and postal sector, each with unique roles and services. The adoption of mobile app has enhanced accessibility and convenience in financial services. वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जो बात करके आए और 3 टाइप में कैटेगराइज हो रहा है सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल, और मोबाइल ऐप के बारे में बताया. सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग. Learning objectives. Understand the difference between wants and needs. Recognize the concept of scarcity of resources. Define financial planning and identify its key goals. Learn the importance and need for financial planning both individually and in business context. Explore the different types of budget and understand the planning and budgeting process. Identify the implication of budget deficits and surplus including their effects and how they are managed. बेसिकली इस चैप्टर में हमें बजट के बारे में पढ़ना है. ठीक है. बजट सरप्लस होता है, बजट डेफिसिट होता है, उनके बारे में पढ़ना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग के बारे में पढ़ना है. ठीक है. और प्लानिंग और बजटिंग का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है. Introduction. Financial planning and budgeting are essential life skills that help individual, families, business, and even nation make the best use of their financial resources. Through careful planning, we can meet our needs, achieve our goals, and respond to challenges in a world where resources are limited. This chapter will introduce key concepts and tools needed to make informed financial decisions. जो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि हमें अपने प्लानिंग करना. ठीक है. फाइनेंशियल की प्लानिंग करना कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी है. ठीक है. और बजट तैयार करना, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हर किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फैमिली हो,
चाहे वो कोई बिजनेस हो, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि आजकल के टाइम पे रिसोर्सेज कितने ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्लानिंग करना कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट भी ना और हम उसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी कर लें। ठीक है। Wants, needs, and scarcity of resources. In economic, the distinction between wants and need is crucial, especially while managing scarce resources. Economic value view of needs and wants. नीड्स क्या होता है? जो हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, पानी, घर और कपड़ा। इससे ज़्यादा एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आप लोग सोचते हैं हमें लग्जरी, अरे वो हमारे नीड्स नहीं है, वो हमारी वांट्स हैं। ठीक है। नीड्स क्या है कि खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, एक कपड़े मिल जाए पहनने के लिए और एक घर मिल जाए। ठीक है। तो ये नेक्स्ट है वांट्स। एडिशनल डिज़ायर बियॉन्ड बेसिक सर्वाइवल नीड्स। वांट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैन इवॉल्व एज सर्कमस्टांसिस चेंज। मतलब वही मैंने भी आपको बताया कि जो नीड्स के बियॉन्ड जाके जो भी हमारी चीज़ें होती हैं हम उसको वांट्स कहते हैं। ठीक है। अब कोई कहता है कि मेरी तो लग्जरियस लाइफ नीड है, बट नहीं, वो नीड नहीं होती, वो वांट्स होती है। Example, while everyone needs food, someone may want government meals or dining out, which is want, not a need. अगर सब के लिए फूड है लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट मील्स खाएं या डाइनिंग आउट करें, तो ये वांट है, नीड नहीं है। ठीक है। Scarcity of resources. Scarcity, the fundamental economic problem where resources are limited but human wants are limited. Unlimited. Scarcity क्या होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, बट जो ह्यूमन उस चीज़ का अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड यूज़ करो ना, नहीं, अनलिमिटेड यूज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। This forces individual and society to make decision on how to allocate their resources. तो इंडिविजुअल और सोसाइटी को बताया जा रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज का कैसे इफ़िशेंटली यूज़ करो। ठीक है। एग्जाम्पल, अ फैमिली में नीड टू डिसाइड वेदर टू स्पेंड लिमिटेड इनकम ऑन एजुकेशन और हेल्थ केयर एज दे कांट एफर्ट बोथ एट द सेम टाइम। Definition of financial planning. Financial planning is the process of estimating how much money is needed for various goals, determining the best way to acquire and collect those funds, and managing finance to ensure long term stability. Financial planning क्या होती है? एक ये प्रोसेस होता है कि हाउ मच मनी इज़ नीडेड फॉर वेरियस गोल्स, मतलब कितनी ज़रूरत मनी की रिक्वायरमेंट है उस गोल को पूरा करने के लिए। ठीक है। और हमें अपने उसका कैसे फंड्स का यूज़ करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग चलती रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स: estimate capital requirements, calculate how much is needed for a short term needs and long term investment. वो कैलकुलेट करता है कि हमें कितनी मनी की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, मतलब वही डेली का खर्चे के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे अगर किसी को हाउस बाय करना हो। ठीक है। डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसाइड द बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी इन फंडिंग योर फाइनेंशियल नीड्स। मतलब डिसाइड करता है, बैलेंस करते हैं किसके बीच में, डेट और इक्विटी के बीच में, अपने उनके फंडिंग में से ही। फ्रेम फाइनेंशियल पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है। डेवलप पॉलिसीज़ फॉर मैनेजिंग योर मनी सच एज, वो पॉलिसीज़ ऐसे डेवलप करता है कि हम अपने मनी को कैसे किस वे में मैनेज करेंगे, जैसे कि बोरिंग हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टिंग, कहाँ से कहाँ हमें सेव करना चाहिए, कहाँ हमें कितना हमें सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। The importance and needs for financial planning. Ensure adequate funds. Financial planning help make sure that you have enough money to meet both current and future planning. Financial planning हमारी मदद ऐसे करती है कि वो उनको ऐसे इस तरह से मैनेज करती है जो हमारी करेंट नीड और फ्यूचर नीड्स हम दोनों फुलफिल कर सके। Support financial goals, whether saving for a vacation, buying a car or investing a business. Financial help planning help prioritize and achieve these goals. ठीक है। हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो हमें अपने गोल्स अचीव करना है, कि उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैनेज करते हैं रिस्क को। बाय प्लानिंग यू कैन बेटर प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह मैनेज करना पड़ेगा, अगर
कल कराना कोई फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे जॉब चली गई या कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Individual financial planning. Individual financial planning focus on managing personal finance, including income, expense, saving, and investment. It involves setting them financial goals and making plan to achieve them. Individual की क्या financial plannings होती हैं? Different types of budget. A budget is a detailed financial plan that outline expected income and expenses over a specific period. बजट प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब क्या होता है बजट के अंदर, हमारा जो एक डिटेल हम फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें इतने स्पेसिफिक पीरियड हमारा इतना इनकम होने वाली है, इतना खर्चा होने वाला है, जिससे हम अपने मनी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है पर्सनल बजट। A personal budget is a plan for managing individual और household income and expenses. Personal budget एक ऐसा प्लान होता है जो मैनेज इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड इनकम होती है और उनको एक्सपेंस को कैसे मैनेज करता है, इसके टेक्निक्स होते हैं। तो 50-30-20 रूल। इसमें क्या होता है, जो 50% इनकम है, ठीक है, वो खर्च करो अपने नीड्स में, 30% अपने करो वांट्स में जो आप लोगों की ज़रूरतें हैं, और 20% करो सेविंग में। इससे क्या होगा, हमारी नीड्स भी पूरी हो रही है, हमारी वांट्स भी पूरी हो रही है, प्लस हमारी सेविंग्स भी हो रही है। और सेविंग्स किसके लिए हो रही है, फ्यूचर के लिए। एनवेलप मेथड। यूज़ फिजिकल एनवेलप्स टू एलोकेट कैश फॉर डिफरेंट स्पेंडिंग कैटेगरी, जैसे कोई ग्रॉसरीज में हो गया या एंटरटेनमेंट में हो गया। Family budget. A family budget is similar to a personal budget but covers the income and expenses of an entire household. Family budget एक हम कह सकते हैं ये personal budget की जैसा ही है। इसमें income and expenses cover होते हैं किसके, entire household के। It involves setting financial goals as a family and making decision about how to allocate resources collectively. Involvement. Encourage all family members to participate in budget decision so everyone understand the financial plan and work toward shared goal. मतलब इसके अंदर पूरे फैमिली मेम्बर्स का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई जब सब इन्वॉल्व होंगे तभी तो हम बजट बना पाएंगे। A business budget outline expected income and expense for a company. बिजनेस बजट क्या होता है कि एक्सपेक्टेड इनकम कितनी हुई है और एक्सपेंस कितना होगा कंपनी के अंदर, वो बिल्कुल बजट तैयार कर लेना। इट हेल्प इंश्योर दैट द बिजनेस हैज़ इनफ कैपिटल टू ऑपरेट ग्रो एंड जनरेट प्रॉफिट। Key consideration. Research industry standard for budgeting allow flexibility for unexpected expenses. Regularly review and adjust the budget to improve efficiency. National budget. A national budget is the financial plan of a government. ये एक किसका प्लान होता है, गवर्नमेंट का। अब भाई गवर्नमेंट के भी तो खर्चे होते हैं, उनकी भी तो इनकम होती है, उसका भी तो बजट तैयार करेंगे ना। इसमें इट आउटलाइन एक्सपेक्टेड रिवेन्यू। इनके लिए रिवेन्यू का क्या सोर्स है, इनकी इनकम का क्या सोर्स है, टैक्सेस एंड प्लेन एक्सपेंडिचर। और ये अपना खर्चा किस पे करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं, रोड पे उसमें आ गई, एजुकेशन पे करते हैं, डिफेंस में करते हैं, हेल्थ में करते हैं। तो अब भाई खर्चा करेंगे तो देखेंगे तो सही ना कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है जिसको हम आगे और यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूज़ बजट टू मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज, इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रमोट ग्रोथ। तो गवर्नमेंट इसलिए बजट बनाती है कि अगर पता चले कि हम और ग्रोथ कर सके इकोनॉमिक में, ठीक है, इंश्योर कर सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट कर सके जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, मैनेज कर सकें। तो गवर्नमेंट भी अपना बजट प्रिपेयर करती है। प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस। सेट फाइनेंशियल गोल्स। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू अचीव फाइनेंशियली। पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको क्या अचीव फाइनेंशियली। एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंसेस। फिर कैलकुलेट करो अपनी एक्सपेक्टेड इनकम को और अपने जितने भी खर्चे हो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। देन करो क्रिएट बजट बेस्ड ऑन योर गोल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अपने गोल के हिसाब से, इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से क्रिएट करो एक डिटेल प्लान को कि आपको अपनी के कैटेगरी बनाओ कि आपको वो मनी कहाँ कहाँ एलोकेट करनी है। इम्प्लीमेंट द प्लान। स्टार्ट द फॉलोइंग द बजट, मेकिंग एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। मॉनिटर एंड रिव्यू। और उसको रेगुलरली चेक करो और चेंजेस करते रहो अपने बजट में कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। अब
डेफिसिट अकर व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड इनकम। बजट डेफिसिट तब होता है जब खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम होती ही नहीं है। और बजट सरप्लस क्या होता है, जब इनकम बहुत ज़्यादा होती है और खर्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट पर्सनल लेवल पे मे लेड टू डेट एक्यूमुलेशन, डेट बढ़ेगा अगर बजट डेफिसिट होगी पर्सनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट में नीड टू बोरो मनी लीडिंग टू इंक्रीज नेशनल डेट एंड पुट। अब गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, तो वो मनी बोरो करेगी जिससे नेशनल डेट बढ़ेगा, पोटेंशियल इन्फ्लेशन। थ्री टाइप्स ऑफ बजट, फिस्कल, रिवेन्यू एंड प्राइमरी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट में क्या आता है, जितने भी गवर्नमेंट के एंड एक्सपेंडिचर है और टोटल रिवेन्यू, और उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे बोरिंग्स। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, अगर व्हेन द गवर्नमेंट नेट इनकम, जो गवर्नमेंट की नेट इनकम होती है, इज लेस देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग्स। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बनते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट के ऊपर बनते हैं, प्राइमरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। सोर्सेज फॉर मीटिंग द डेफिसिट, गवर्नमेंट कैन मेट द बजट डेफिसिट थ्रू बोरिंग टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को, तो वो क्या कर देती है, टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, जो उनका बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो मैनेज हो जाता है। एवेन्यूज फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस, व्हेन देयर इज अ बजट सरप्लस इंडिविजुअल और गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट और allocate surplus fund into saving account, stock, bonds or other investment opportunity to grow wealth, pay off debt। भाई अगर सरप्लस है तो उनका जैसे मर्जी यूज़ करो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट को पे ऑफ कर सकते हो। ठीक है। यूज सरप्लस फंड टू रिड्यूस एक्सिस्टिंग डेट, लोअरिंग फ्यूचर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। Summary, financial planning and budgeting are key to managing the limited resources effectively, whether for individual, family, business, or nation. Budgeting helps ensure that money is available to meet current needs, achieve long term goals, and prepare for future uncertainty. Through careful planning, we can make better financial decision and improve our फाइनेंशियल वेलबींग। वही जो अभी हमने ऊपर बात की गई है फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग की, कि कैसे कैसे यूज़ करना है सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। ठीक है। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 3। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।